Hello everyone, hope you all are doing good. In my last video I had discussed about quadratic forms and some of its value classes I have discussed. Now see मैंने आपको जो बताया था पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, इनडेफिनेट, और हाउ टू चेक द वैल्यू क्लासेस in terms of eigen values. I have told you a little bit. Now in continue to that video I am discussing today the quadratic forms in terms of the principal minors of the matrix. Okay, now see a real quadratic form. This is the quadratic form. A real quadratic form x transpose ax is positive definite if and only if all the principal minors of the matrix is positive. Principal minors, वर्ड प्रिंसिपल माइनर से आपको क्या समझ में आ रहा है? एनी माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल माइनर. ओके, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. हाउ वी डिफाइन प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स? ओके, बट आई हैव जस्ट सेड एनी minor of A obtained by deleting the corresponding rows and columns is called the principal minor. और हमें इसके कंडीशन के लिए all the leading principal diagonals को चेक करना है. अगर वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, if and only if all the principal minors of the matrix is positive, then we say that it's a positive definite matrix. And if the matrix is positive definite, quadratic form is positive definite, then we say that all the principal minors are positive. Now see, if this is a matrix of order 3x3, what are the principal minors of this matrix? First one is A11. By deleting this corresponding rows and columns, you get minor of order 1. Then minor of order 2 is A11, A12, A21, A22, and minor of order 3 is the matrix itself. Okay, I am not writing. In this matrix you can show it like this is the minor of order 1. This is the minor of order 3, and this matrix itself is minor of order 3. This is minor of order 2. If all the three principal minors of this matrix are positive, then we will call that quadratic form to be positive definite. Okay, now for the negative definite, what we will have, if the principal minors follow alternate plus minus, negative positive, then we call it a negative definite matrix, but the minors should start with a negative sign. I mean to say, if these are the minors of order 1, the first minor will start as negative, second one positive, and third one again negative. Means alternate plus minus will be there starting with negative minor. मीन्स पहला ऑर्डर का जो माइनर होगा वो नेगेटिव होगा, उसके बाद वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, लाइक दिस ऑर्डर विल फॉलो. देन वी कॉल दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म नेगेटिव डेफिनेट. ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है, मीन जस्ट आई एम टेलिंग यू. नाउ द थर्ड वन इज अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर एंड ऑल इट्स प्रिंसिपल माइनर्स आर नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है कि नेगेटिव नहीं हो और वो ज़ीरो हो सकता है. ओके, नॉन नेगेटिव इंक्लूड्स ज़ीरो ऑल्सो. तो इस केस में सिंगुलर ए, सिंगुलर मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो, मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज़ ज़ीरो. आई told you in the last video that in the positive definite matrix all eigen values must be positive, and in positive semi definite at least one of the eigen value is zero. At least one means more than one can also be zero. At least one should be zero, and if any of the eigen value is zero, then the matrix is singular matrix. Okay, so here A must be a singular and all its principal minors are non-negative, means it can be zero or it can be positive, but can't be negative. Okay, this is the thing about the minors, principal minors. You can check it very easily in exams. If a matrix is given, you should check the minors, principal minors, and if it is positive, then we can easily say that the matrix is quadratic form is positive definite. Okay, now in terms of trace, these are the conditions. If
this is a quadratic form and A is a matrix of order 2 cross 2. This is about a 3 cross 3, or you can check for 4 cross 4 also. But if the matrix is only 2 cross 2, then if the trace of the matrix is greater than 0 and determinant greater than 0, then Fx is always positive definite. And if the trace is 0, or you can say the sum of the coefficients of xi square in the quadratic form is 0, then the quadratic form is indefinite. Okay, means if the sum of these coefficients are 0, means these are the coefficients of xi square, इसका अगर सम 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स इनडेफिनिट होती है. मतलब इनडेफिनिट मैट्रिक्स के हमेशा ट्रेस का सम 0 होगा, और अगर ट्रेस ग्रेटर देन 0 है, डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो Fx इज पॉजिटिव डेफिनिट, इट इज़ ऑलवेज ट्रू. ओके, now come to some examples how to decide whether a matrix is positive definite. I will discuss. See, पहले वाले एक्सप्रेशन में 6x स्क्वायर प्लस 35y स्क्वायर प्लस 11z स्क्वायर प्लस 4zx, इट्स अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z. मैंने आपको बताया था कि हम लोग मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं. नाउ इसके एग्जांपल से हम पहले वाले के लिए देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करना है. इफ़ यू रिमेंबर, I told you to write the coefficients of xi squares in the diagonal like this. Suppose here 6x square, तो x square का coefficient 6 है, y square 35 and there is no coefficient 11z square, तो 11z square का coefficient भी है, तो उसको यहाँ लिख लेंगे. Basically what is this form? 6x square plus 35y square plus 11z square plus 0xy plus 0yz प्लस 4zx. सी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट्स है और 4zx है. यहाँ एक्स वाई और वाई जेड का कोफिशिएंट्स नहीं है, मीन्स इट्स अंडरस्टूड दैट इट इज़ 0 है दोनों के कोफिशिएंट्स. तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ वाले के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, ये एक्स जेड है, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट्स को हम लोग डिवाइड बाई 2 करके लिखते हैं. बट हियर इट इज़ 0, तो 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है. एक्स जेड के लिए क्या है, 4zx, और एक्स जेड और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, तो ये 4 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा. सिमिलरली सी एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है, तो ये 0 हो गया. नाउ हियर व्हाट इज़ हियर, वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड का कोफिशिएंट भी 0 है. एंड हियर वाई जेड एक्स इज़ 2 एंड जेड वाई इज़ 0. तो अगर आपने मैट्रिक्स बना ली, उसके बाद कोई टफ नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस आपको इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लिखनी है. एंड ऑलवेज आप इस चीज़ से चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक होगी. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वी आर गेटिंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, अगर यहाँ भी आपको नहीं मिलता है तो आप समझिए कि यू हैड डन समथिंग रॉन्ग एंड प्लीज़ चेक इट वंस. तो यहाँ हम देख रहे हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई. और अभी जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल माइनर से कैसे चेक करते हैं, आई विल शो यू दैट. See, your first minor is 6, it is greater than 0. Second minor क्या होगा, 6 0 0 35. ये क्या 6 इंटू 35 माइनस 0, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो माइनर है, ये खुद में माइनर है, तो इससे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 35 इंटू 11 माइनस 0 माइनस प्लस 2, ये तो 0 है, माइनस 70. इसको कैलकुलेट करने पे ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा. ठीक है, तो सी हियर ऑल द 3 माइनर्स आर पॉजिटिव, तो वी कैन से दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म. ठीक है, तो ये यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट आ गया. और एक सेकेंड वे क्या है चेक करने का, यू कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड if all the eigen values are positive, then you can say that the matrix is positive definite. Okay, see friends, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस मैट्रिक्स बनानी है और फिर आपको उसको डिफाइन करना है. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. ये भी 3 वेरिएबल्स में है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर 2x1 x2 2x2 x3, और हमें क्या नहीं गिवन है, यहीं तक है, x1 x2 x2 x3, और x1 x3 नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया. नाउ अब आपको पता है कि मैट्रिक्स कैसे बनानी है. इट्स वेरी सिंपल. पहले सारे एक्सरसाइज के कोफिशिएंट्स को डायगोनल में लिखेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट
इसके कोफिशिएंट को डिवाइड बाई 2 करना है। x2 x3 कहाँ आएगा, यहाँ। इसके पास x1 x3 0 है, x2 x1 is 1, x3 x1 is 0 and x3 x2 is 1. See again it's a symmetric matrix. Okay, now check the minors. पहला माइनर क्या है, -1 नेगेटिव, सेकेंड वन इज दिस, तो क्या होगा 2 - 1 is 1 पॉजिटिव, एंड द थर्ड माइनर इटसेल्फ -1, 4 - 1, देन अगेन -1, इसको किए तो -2, ओके, -3 + 2 is -1 नेगेटिव। मैंने क्या बोला था कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्टिंग में तो नेगेटिव, देन इट्स अ नेगेटिव डेफिनेट फॉर्म। ये देखिए पहला नेगेटिव है, सेकेंड माइनर इज पॉजिटिव एंड थर्ड माइनर इज अगेन नेगेटिव। अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आर गेटिंग स्टार्टिंग विद अ नेगेटिव माइनर, सो इट्स अ नेगेटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, ये दोनों बहुत ईजी था। एग्जाम्स में यू कैन गेट लाइक दिस फॉर्म एक्सप्रेशन, यू हैव टू फॉर्म द मैट्रिक्स एंड चेक वेदर इट्स अ। और सेकेंड वे, इफ़ आपको प्रिंसिपल माइनर्स का कंसेप्ट याद नहीं है तो आप आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव डेफिनेट के लिए मैंने क्या बोला था कि सारी आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव डेफिनेट होगा। और सिंपल वे में आप इसमें सेमी डेफिनेट और इनडेफिनेट वाले फॉर्म को भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी डायगोनल का सम 0 नहीं हो रहा है, तो इनडेफिनेट तो ऐसे ही नहीं है, यहाँ से हम लोग देख के ही बोलेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी सिग्नेचर और इंडेक्स का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, रैंक एंड सिग्नेचर, जिससे कि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रैंक एंड सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम डिफाइन करते हैं रैंक और इन सिग्नेचर होता है क्या। वन मोर टर्म इज द इंडेक्स। इंडेक्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज इन द कैनोनिकल फॉर्म, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पी। सी पॉजिटिव एंट्रीज इन द कैनोनिकल फॉर्म मतलब कोई भी मैट्रिक्स है तो हम लोग कैसे नॉर्मल फॉर्म में उसको रिड्यूस करते हैं, पहले नीचे 0 0 ला के, तो उस तरह से एक फॉर्म होता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। पहले आप ये टर्म्स का मतलब समझ लीजिए। तो इसमें जब भी हम रिड्यूस करते हैं तो जो भी इस तरह का कुछ एंट्रीज़ है उसमें क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज़, तो जितने भी पॉजिटिव एंट्रीज़ होंगे ना वो सारे इंडेक्स होंगे। इंडेक्स कितने हो गए इस मैट्रिक्स के लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज 2 हैं तो इंडेक्स इज 2। ठीक है, नाउ रैंक रिप्रेजेंटेड बाय आर, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज। नॉन ज़ीरो एंट्रीज मतलब अगर ज़ीरो नहीं है वो काउंट होगा, इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके लिए रैंक कितना हो गया 3, नॉन ज़ीरो एंट्रीज है तीनों। उसके बाद आता है सिग्नेचर, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज माइनस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज क्या है, इंडेक्स है P, minus total number of negative entries. Here rank is not the number of positive or negative, it is a number of non-zero entries. Okay, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमें पॉजिटिव एंट्रीज पता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज पता है, तो रैंक नंबर ऑफ नेगेटिव एंट्रीज कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज, तो वही तो नेगेटिव एंट्रीज होंगी ना, तो यू कैन राइट इट एज R माइनस P। सिग्नेचर का फॉर्मूला फिर क्या बन गया, P माइनस R माइनस P इज 2P माइनस R। ओके, ये सिग्नेचर रैंक इंडेक्स हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, किसी भी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म को इक्विवेलेंट शो करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, टू रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if and only if they have the same rank and signature। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है इससे कि दो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को हम लोग इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम रैंक एंड सिग्नेचर। मतलब दो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे एंड चेक करेंगे कि उसका रैंक और सिग्नेचर कितना है। अगर दोनों इक्वल आता है और रैंक एंड इंडेक्स यू कैन सी, ठीक है, इस दोनों को अगर इक्वल दिखाते हैं तो वो दो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी क्वेश्चंस। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कि हमने वैल्यू क्लासेस इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज़ देखी, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल माइनस देखी, तो इन टर्म्स ऑफ रैंक एंड सिग्नेचर भी हम लोग चेक करते हैं पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं,
सपोज S इक्वल टू R इक्वल टू N, N जहाँ पे क्या है, Eij इज़ द मैट्रिक्स ऑफ N क्रॉस N, तो N इज़ द ऑर्डर हियर। अगर ये तीनों बराबर है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, पॉजिटिव डेफिनेट, ओके। एंड इफ माइनस S इक्वल टू R इक्वल टू N तो नेगेटिव होगा। अगर S इक्वल टू R बट इट्स लेस देन N तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। बहुत सारे 3-4 प्रोसेस है कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। अब इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप एग्ज़ाम में कौन सा तरीका इजी लगता है और कौन सा जल्दी अप्लाई कर पाएँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी एक ही प्रोसेस पे स्टिक करें। यू कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज। इफ इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस यू कैन गो फॉर द माइनस, एंड अदरवाइज इफ़ यू हैव टू फाइंड दिस देन यू कैन चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो। और अगर सिग्नेचर रैंक के बराबर नहीं हो तो वो इनडेफिनेट हो जाता है, ठीक है। दिस आर द कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ रैंक एंड सिग्नेचर एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एस इज देयर सिग्नेचर, ओके, and R is the rank. I told you about this thing. Signature क्या है, rank क्या है? Signature is 2p minus R, where p is the index and R is the rank. कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इक्विवेलेंट वाला थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि इसके बाद ये कंटिन्यूएशन में है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।